چلیے اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ایک وفد نے تلنگانہ ریاستی اقلیتی کمیشن کے صدر نشین محمد قمر الدین سے خاص ملاقات کی اور شہید مسجد ایک خانہ میں نماز ادا کرنے اور بے قصور نوجوانوں پر ہراساں نہ کرنے کی مانگ کی۔ ساتھ ہی مسجد کی شہادت میں ملوث افراد پر کارروائی کی مانگ کی گئی۔ مسجد کو جلد اسی مقام پر تعمیر کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ کمیشن وہاں پر وزٹ کرنا چاہیے، پوری فائل کرسپونڈنس کی فرام دا ورک بورڈ، فرام دا GHMC، فرام دی آپ کے گورنمنٹ سے جو بھی کرسپونڈنس ہوا اور کون لینڈ گرابر کیا پیپر آن دیا اس کے اوپر کمیشن معائنہ کرنا چاہیے۔ نماز چل رہی تھی وہاں پر تو دانستہ طور پہ ہونا بول کے پولیس کی طرف سے اس کو کمیونل رنگ دیا گیا ہے تاکہ مسلمان پھر سے وہاں پر نماز نہ پڑھے عارضی شٹ کے اندر۔ تو اب اس میں جو ہے اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے تو اس میں رولنگ پارٹی کا بھی رول رہتا ہے اس میں، تو خود TRS یہ چاہ رہی کہ وہاں پر مسجد نہیں بننا دوبارہ بول کے، اور ہوم منسٹر صاحب کا جو بیان تھا وہ اشارہ دے دیا کہ وہ مسجد وہاں پر نہیں بنے گی۔ بلکہ ہم کمیشن سے مطالبہ کیے ہیں کہ پہلے تو جتنے مسلم بچوں پہ کیسز جو بک کیے گئے 50-60 پہ، وہ پورے کیسز کو واپس لینا چاہیے، اور ان پورے بچوں کو جو پولیس روزانہ بلا کے حاضری دے رہی سحری میں، افطار میں، رمضان میں روزے داروں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ بند ہونا چاہیے، اور امیڈیٹ وہاں پر نماز چالو ہونا چاہیے۔ بھائی نماز سے کیا ہے بولیے آپ؟ آل انڈیا صوفی علماء کونسل حیدرآباد کے صدر حکیم سید شاہ محمد خیر الدین نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR سے سوال کیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کو آخر پورا کب کریں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں حکومت سے مختلف سوالات کیے ہیں۔ اقلیتی بجٹ مکمل خرچ کیوں نہیں ہوتا؟ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے دیے جانے والے لون آسان کیوں نہیں ہیں؟ موزنین کے اعزازیہ میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے مسلم میتوں کی منتقلی کے لیے ایمبولینس کا انتظام کرنے، مسلم قبرستانوں کی حصار بندی اور مفت تدفین کا انتظام کرنے، اور وقف بورڈ کو عدالتی اختیار دینے اور امبرپیٹ کی شہید مسجد ایک خانہ کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرنے کی مانگ کی، اور مطالبے کی عدم یکسوئی پر حکومت کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹیوں اور رمضان تحفے کی بائیکاٹ کرنے کی بھی مسلمانوں سے اپیل کی۔ 1000 کروڑ روپے سالانہ مائنارٹی بجٹ پاس کر رہے ہیں، لیکن ہر سال وہ بجٹ واپس جا رہا ہے۔ یہ واپس جانے کی وجوہات کا پتہ لگانا چاہیے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل یہ چاہتی ہے کہ راست فائنانس کارپوریشن کے ذریعے سے لون کو اجرا کیا جائے۔ ائمہ و موزنین کے اعزازی ابھی تک جاری نہیں ہوئے، اور کئی درخواستیں جو نا پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف حکومت توجہ دے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ دیا جائے اور اوقافی جائیدادوں پر سے ناجائز قابضین کو ختم کیا جائے۔ تلنگانہ میں جہاں بھی اوقافی قبرستان ہوئے وہاں پر ان کی حصار بندی کی جائے اور مسلم میتوں کی مفت تدفین کے انتظامات کیے جائیں۔ مسلمانوں کی میتوں کی منتقلی کے لیے ہمارے پاس ایک سواری نہیں ہے، اس کے طرف ہمارے چیف منسٹر کو فوری توجہ دینا چاہیے۔ شہر کے مسلم قبرستانوں کی حصار بندی کی جائے اور وہاں پر غسل خانوں کو تعمیر کیا جائے، کہ اوقافی درگاہوں اور مساجد کے لیے متولیوں کا تقرر کیا جائے یا وہاں پر انتظامی کمیٹی کو بنا دیا جائے تاکہ وہاں کے اوقافی جائیدادوں کی حفاظت ہو سکے۔ ہم یہ حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اسی مقام پر مسجد کو دوبارہ تعمیر کی جائے، ورنہ مسلمان شدید احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ہمارے ان مطالبات کی جو نا عدم ایک سوئی تو 4-5 سال سے مسلسل ہو رہی ہے۔ تو ہم اس سال تلنگانہ کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بطور احتجاج مسجد شہید ہونے کی بنا بطور احتجاج حکومت کی جانب سے جو افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا بائیکاٹ کریں، اور جو کپڑے دیے جاتے ہیں اس کا بھی بائیکاٹ کریں، تاکہ حکومت کو احساس ہو جائے کہ ایک مسجد گرانے سے مسلمانوں پر کیا گزرتی ہے۔ اورنگ آباد میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اس فساد میں 2 افراد کی جانیں گئیں، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے، کروڑوں روپے کی املاک تباہ و برباد ہو گئی۔ اس فساد میں جن کا نقصان ہوا ان کی تھوڑی بہت بھرپائی ہو گئی، لیکن اپنے 17 سالہ لاڈلے بیٹے کو کھونے والے ہارون قادری کی تو گویا دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی ہے۔ اور المیہ یہ کہ 1 سال بعد بھی حارث قتل کیس میں FIR تک درج نہیں ہو پائی ہے۔ پیش ہے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ 1 سال پہلے اورنگ آباد کے شاہ گنج منڈی علاقہ
कप्तान कदर और दीगर इलाकों में फिरका वाराना फसाद फूट पड़ा था। उस फसाद में एक संरचीदा शख्स जलकर हलाक हो गया था, जबकि 17 साल हारिस कादरी की गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस की फायरिंग में हारिस की मौत हुई थी। काबिल जिक्र बात यह है कि संरचीदा शख्स की मौत के मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि हारिस कत्ल केस में 1 साल बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई है। जवा साल बेटे से महरूम एक बाप ने अपने दर्द की कहानी कुछ यूं बयान की। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन ये हादसे से मेरे बच्चा चले गया, उस मेरा घर वीरान हो गया उसकी वजह से। पुलिस का रोल क्या बताए, पुलिस का कोई रूल नहीं। पुलिस ने अपना काम कर दी और पुलिस अपनी जगह बैठी है। अब मरने वाले का मरा, जाने वाले का गया, उसको कोई उनको फिक्र नहीं किसी की नहीं। वो किसी भी गोलीबारी कर सकते क्योंकि कानून उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी बेगुनाह को मार सकते हैं और गुनाहगार को मार सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद तो छोड़ो कि किसी कोई मुलाकात के लिए भी किसी के पास टाइम वक्त नहीं है, और ना ही किसी लीडर के पास वक्त है कि भाई हारिस के घर पर चल के जाके हम मुलाकात करें, खैरियत लिए। हारिस कत्ल केस में पुलिस के जानिबदाराना रोल पर भी सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही इलाकाई क़यादत की बेहिसी पर भी लोगों में नाराजगी है, क्योंकि मकामी लीडरों की यकीन दहानी के बाद भी लाश तहवील में ली गई थी। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद हारिस के वालिदैन अदालती झमेलों में उलझ कर रह गए हैं। हारिस केस के वकील ने भी पुलिस की जानिबदारी पर सवाल उठाया है। मेरी डिमांड यही है कि अभी केस को 1 साल हो गया, ये पुलिस की गोली फायरिंग में जो बच्चे की डेथ हुई, आज तक हमारी FIR भी नहीं फटी। और हम यही चाहते हैं कि हमारी FIR पढ़ने, पुलिस वालों ने हमारी FIR लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई FIR नहीं फटी, इसलिए हमको कोर्ट जाना पड़ा। इस साल औरंगाबाद शहर में जो फिरका वाराना फसाद रोनुमा हुआ, उसमें नवाबपुरा इलाके में एक नौजवान हारिस कादरी की जो है पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। हारिस कादरी के फैमिली मेम्बर्स मुझसे अप्रोच हुए थे और मैंने जो है तो उनकी तरफ से जो है सेशन कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। मेरी पिटीशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर मबनी थी, जिसका नाम है सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस फैसले की रोशनी में जो है हमने जो है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये मांग की थी कि इस केस में जो है एक सेपरेट FIR दर्ज हो और इसकी CID इंक्वायरी हो। लेकिन 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है इसके अंदर जो है पुलिस ने जो है तो टाइम टू टाइम जो है डिले किया, रिपोर्ट दाखिल नहीं की, और हर बार जो है कोर्ट जो है रिपोर्ट ही तलब करती रही। जवां साल बेटे की महरूमी किसी भी बाप के लिए जानलेवा सदमे से कम नहीं है। हारून कादरी जिस कर्ब से गुजर रहे हैं उन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इस दुख का मदावा बस यही हो सकता है कि एक मजलूम बाप को इंसाफ मिल जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। माह रमज़ान में अल्लाह के हुक्म पर मुसलमान रमज़ान के मुबारक महीने में ज़कात की अदायगी करते हैं। मुंबई के साहिब सरवत मुसलमान बड़ी तादाद में ज़कात निकालते हैं और ज़कात की हुसूलियाबी के लिए शुमाली हिंद के मदारिस के सफ़ीर बड़ी तादाद में मुंबई का रुख भी करते रहे हैं। मदारिस इस्लामिया के सफ़ीरों के ज़रिए होने वाले फ्रॉड और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अब जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र बाकायदा तहकीक के बाद तस्दीकनामा फराहम करती है। हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां से बड़ी तादाद में ज़कात सदकात जो है मदारिस को दिया जाता है। यहाँ पर जो है वो शुमाली हिंद की यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम जैसी रियासतों से बड़ी तादाद में सुफरा आते हैं और इन सुफरा को जो है जो चंदा दिया जाता है, जो ज़कात सदकात की रकम दी जाती है, तो उसके लिए जो है वो तस्दीकनामा दिया जाता है ताकि किसी भी किस्म का फ्रॉड ना हो, किसी भी किस्म का जो है वो धोखेबाजी ना हो। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करती हैं, तस्दीकनामे देती है। हमारे साथ हज़रत यहाँ पर मौजूद, हम इनसे बात करते हैं कि तस्दीकनामा जो आप देते हैं इसकी जो है वो आप किस तरह देते हैं, इसका तरीका क्या है? हमारे यहाँ तस्दीक देने का तरीका ये है कि जमीयत उलमा की ज़िलाई या सूबाई यूनिटें जिन इलाके से ये लोग आते हैं वो अपने इलाके की यूनिटों से तस्दीकनामा लेकर के आते हैं। वो यूनिटें अपने इलाके के मदारिस का मुआयना करती हैं, उनका जायज़ा लेती हैं और जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वो हमारे पास खतूत भेजती हैं, जिसको हम ज़िलाई या सूबाई तस्दीक कहते हैं।
अच्छा, एक बात ये बताइए कि मतलब कितनी तादाद में सुफरा आते हैं आपके यहाँ पर, और उनको जो है वो किस तरह का तस्दीकनामा दिया जाता है? सुफरा की तादाद मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे ऑफिस पर जो सुफरा आते हैं उनमें आमतौर से रमज़ानुल मुबारक में 2,500 से 3,000 तक सफ़ीर आते हैं। बहुत सारे ऐसे सफ़ीर होते हैं जिनके पास कागजात मुकम्मल नहीं होते हैं, जिनको वापस जाना पड़ता है। बुनियादी कागजात अगर मुकम्मल होते हैं तो हम उनको आर्जी तौर पर कुछ दिनों के लिए तस्दीक दे देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, किस मदरसे से आपका ताल्लुक़ है और कब से मुंबई आ रहे हैं? जी, मैं किशनगंज बिहार से आया हूँ, जामिया मिसबाहुल उलूम भगाल से। तो हम लोग जो आते हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छे काम होते हैं यहाँ बॉम्बे में। ये लोग जो काम करते हैं, तस्दीक नामे वाले हजरात बहुत बेहतर काम करते हैं कि भाई कोई गलती नहीं हो, कोई 420 220 जो करते हैं गलती करते हैं, ऐसा काम नहीं हो सके। बहुत बेहतर काम है ये बताइए कि आप काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, आप कब से आ रहे हैं मुंबई चंदे के लिए माह रमज़ान में, और किस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है यहाँ से? देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल से यहाँ बम्बई में रहा हूँ। मैं यहाँ खिदमत भी किया हूँ शाहीन धरावी में, और मदरसे के सिलसिले से जो है करीब 15-20 साल से आना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोग ताउन करते हैं। आप ये बताइए कि जो रकम आपको मिलती है यहाँ से मुंबई से, क्या वो काफ़ी होती है आपकी? जी, काफ़ी तो नहीं होती है, लेकिन उसमें से फिर गांव के जो धान वगैरह ये सब का भी कलेक्शन होता है, चर्म कुर्बानी का, ये सब मिला जिला करके कुछ बाकी भी रह जाते हैं। तो उसमें फिर दूसरे साल में जो है फिर मेहनत किया जाता है, उससे अगर हो जाते हैं तो फिर मिला लेते हैं, नहीं तो फिर जो है फिर बाकी रह जाते हैं। इसी तरह काम चला। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, और आपको तस्दीकनामा मिल गया है? जी, मुझे तस्दीकनामा मिल गया है, और मैं बिहार झारखंड से गोड्डा ज़िला से आया हूँ, और मुझे बहुत मुशक्क़त हुई है माशाल्लाह, लेकिन तस्दीकनामा मिल गया मुझे। ये देखिए, जिस तरह का तस्दीकनामा जो है वो दिया जाता है जमीयतुल उलमा की तरफ से और दीगर तंजीमों की जानिब से। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र जो है वो बड़े पैमानों पर तस्दीकनामे जारी करने का काम करती है। मुंबई में जो है वो हर साल करोड़ों रुपये जो है वो ज़कात निकलती है, सदक़ात निकलते हैं, और यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम का जो बेल्ट है, इस बेल्ट के जो है वो अक्सर व बेशतर मदारिस इन्हीं रकम से अतियात से चलते हैं। कैमरे पर्सन विलास चिपड़े के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। ब्रेक के बाद खास बात इंडिया में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में नवाबी अहद के तारीखी स्कूल की इमारत को नई जिंदगी देने के लिए एमपी वक्फ बोर्ड ने पहल कर दी है। 150 साल कदीम स्कूल की इमारत में मसाजिद कमेटी, वक्फ बोर्ड, औकाफ आम्मा के दफातर लगते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब इसकी तज़ीनकारी के लिए कदम उठाया गया है। पेश भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की ये खास रिपोर्ट। भोपाल को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर पर 1722 से 1949 के दरमियान तक 9 मर्द और 4 बेगमात की हुकूमत रही। लेकिन भोपाल के अहद ज़र्री की बात करें तो बेगमात के अहद को भोपाल के अहद ज़र्री से ताबीर किया जाता है। भोपाल की तीसरी खातून फरमारवा नवाब शाहजहां बेगम को इमारतों की तामीर का बहुत शौक था। उन्होंने जहां भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद, ताजमहल, भोपाल रेलवे स्टेशन को तामीर करवाया, वहीं उन्होंने तालीम के मैदान में नुमाया काम किए। नवाब शाहजहां बेगम मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम साहिब दीवान शायरा थी। दीवान ताज और दीवान शीरी उनकी यादगार हैं। यही नहीं, उन्होंने खजीनतुल लुगात के नाम से 6 जुबानों पर मुश्तमिल एक डिक्शनरी भी लिखी थी। ऐसी लुगात आज तक नहीं लिखी गई जो बैक वक्त 6 जुबानों में हो। उन्होंने जहां अपने अहद में 122 मदारिस कायम किए, वहीं भोपाल में जदीद तालीम के लिए शाहजहानी स्कूल कायम किया, जो बाद के अहद में रॉयल अलेक्जेंड्रिया नोबल स्कूल के नाम से मशहूर हुआ। इस स्कूल में नवाबी अहद में रॉयल फैमिलीज, जागीरदार, उमरा और रोसा के बच्चे तालीम हासिल करते थे। इसके बारे में मुअर्रिख कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं।
तो ये ऑलरेडी वहाँ पे एक स्कूल था शाहजहां बेगम के ज़माने में जो वहाँ चल रहा था, वो भी जागीरदारों के लिए ही बनाया गया था। इसके बाद शाहजहां बेगम के जब दौर आया और उन्होंने जब हमीदुल्लाह खान साहब के लिए तालीम के लिए ज़रूरत पड़ी तो उनका वहाँ जागीरदारों के लिए कोई अच्छा स्कूल बनाया। तो 1903 में 17 अक्टूबर 1903 के अंदर एक फिर फाउंडेशन स्टोन रखा गया। अलेक्जेंड्रा, उसको पहले नॉबल्स स्कूल रखा गया जिसको बाद में अलेक्जेंड्रा नॉबल्स स्कूल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो, लेकिन ये 1903 में जो बना था ये आज सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी कि जो अलेक्जेंड्रा की स्कूल की जो तामीर होना थी वो सेंट्रल लाइब्रेरी के शक्ल में, जो बाद में के लॉर्ड मिंटो के आने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा वो बनाना था उनको म्यूजियम, तो उसमें शिफ्ट कर दी गई। नवाब शाहजहां बेगम के अहद में तामीर किए गए रॉयल अलेक्जेंड्रिया स्कूल में कई अहद में काम हुआ। इसकी पहली तामीर तो 1872 में हुई थी। उसके बाद 1903 और 1905 में इस इमारत की तौसी का काम किया गया। यही वजह है कि फन तामीर के लिहाज से हमें इसकी इमारतों में बहुत फर्क देखने को मिलता है। जब भोपाल की तारीखी ताजुल मसाजिद की तामीर का काम शुरू हुआ था तो मौजूदा में मसाजिद कमेटी क्या जिस इमारत में दफ्तर लगता है, यहीं से मुंशी हुसैन खां इसकी तामीर का काम देखते थे। रॉयल अलेक्जेंड्रिया स्कूल की तामीर का काम इंजीनियर मिस्टर क्विक की निगरानी में हुआ था। इसके गेट की इफ्ताह 1909 में लॉर्ड मिंटो के हाथों हुआ था, जिसका पत्थर आज भी शिकस्ता हालत में ही सही मौजूद है। 150 साल इस इमारत में आज़ादी के बाद पहले DPI, उसके बाद वक्फ बोर्ड, औकाफ आम्मा और मसाजिद के दफ्तर लग रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब इसकी तज़ीनकारी शुरू हुई है। इस बारे में बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर कुछ इस अंदाज में बात करते हैं। ये तारीखी बिल्डिंग है, ये सही है, और ये शायद अलेक्जेंड्रिया स्कूल के नाम पर था और बड़ा तारीखी स्कूल था ये, और रॉयल फैमिली के लिए बना गया था ये स्कूल। इसका मेंटेनेंस जैसा होना चाहिए था वैसा मेंटेनेंस हुआ नहीं। इसकी वजह से काफ़ी खस्ता हालत में हो गई थी ये बिल्डिंग, और अभी भी चूंकि वक्फ बोर्ड के पास है ये बिल्डिंग, लेकिन इसका मेंटेनेंस और इसका जिम्मा PW के पास ही है। लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं। बारिश का पूरा पानी अंदर आता है, बैठने का पूरा इंतज़ाम, और पिछले सालों तो इसका बिल्डिंग छत भी गिर गई थी चेयरमैन के ही कमरे की, तो नहीं था। लेकिन अभी मीटिंग हॉल में हमने शुरुआत की है कि इसका रेनोवेशन का काम किया जाए। ये पूरी इमारत PWD की तहवील में है और गुज़िश्ता साल वक्फ बोर्ड चेयरमैन के दफ्तर की छत भी गिर गई थी। उसके बावजूद PWD ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। अब MP वक्फ बोर्ड ने अपने महदूद वसाइल को देखते हुए खुद इसकी तज़ीनकारी का काम शुरू किया है। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। दीनी मदारिस में बच्चों के इखलाक और किरदार को संवारा जाता है। दीनी मदारिस के खिलाफ बोलने वाले मदारिस में जाकर देखें कि किस तरह मदारिस इंसान को इंसान बनाते हैं। बेंगलुरु में मुनक़िदा खास तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। दरअसल बेंगलुरु के DJ हली इलाके में मदरसा अबू बकर की सालाना तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर इस्लामिक क्विज़ के साथ साथ वालिदैन का मुकाम, पड़ोसियों के हुकूक, आदाब ज़िंदगी, इस तरह के कई अहम मौज़ूआत बच्चों ने अपनी तकरीरों, मकालमे और ड्रामों के ज़रिए पेश किए। मदरसे के मुंतज़मीन कहते हैं कि बच्चों के लिए रोज़ाना 1 घंटे पर मुश्तमिल मकतब चलाया जा रहा है। ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल के तलबा दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। रोज़ाना 1 घंटे की तरबियत से बच्चों के इखलाक और किरदार संवर रहे हैं। इलाके के समाजी कारकुनों ने नन्हे मुन्ने बच्चों की सलाहियतों की भी खूब सताइश की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इदारा करीब 13 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारे मदरसे में करीब 300 तलबा रहते हैं। हमेशा इनको हम कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, और फिर इनको नमाज सिखाई जाती है, रोज़े के फ़राइज़ सिखाए जाते हैं, नमाज के फ़राइज़ सिखाए जाते हैं, दीन की जितने अरकान हैं, दीन की जितने अमाल हैं वो सब इनको सिखाई जाती है, अखलाक सिखाया जाता है। जैसा कि आपने देखा बच्चों ने ड्रामा पेश किया जिसमें माँ की मोहब्बत, और बच्चों ने तकरीर की वालिदैन वालिद का क्या मकाम, माँ का क्या मकाम, ये तमाम चीज़ें मदरसे में सिखाई जाती है। मदरसा इस्लाम के एक मजबूत किले हैं जहाँ बच्चों को निखार कर दुनिया के अंदर जहाँ भी रहे वो हक़ पर रहे। अब थोड़े लोगों का अंदाज़ा ये है कि मदारिस में कुछ और सिखाया जाए, गलत तरबियत दी जाती है। ऐसा बिल्कुल कहना और मानना और अपने दिमागों में रखना बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो तरबियत दी जा रही है
یہ صرف اور صرف اچھائی کی طرف دعوت دینے والی تربیت ہے. والدین کی عزت، پڑوسی کے حق، حب الوطنی. احمد آباد میں جہاں ایک جانب روزدار شدید گرمی کی مار جھیل رہے ہیں، وہیں پھلوں کی قیمت ہے کہ آسمان چھو رہی ہے. اس کی وجہ سے بھی روزدار پریشان ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پھلوں کا دام چاہے جتنا بڑھ جائے مگر روزدار افطار کے وقت پھلوں کا استعمال کرتے ضرور ہے. گلبرگہ کے مسلمان بھی پورے عقیدت و احترام کے ساتھ ماہ سیام کا اہتمام کر رہے ہیں. گلبرگہ کی کئی مساجد میں تراویح میں ختم قرآن مکمل ہو گیا ہے. کئی مساجد میں 10 روزہ شبینہ ابھی جاری ہے. 6 روزہ 7 روزہ شبینہ اختتام کو ہے. ان شبینوں میں تاجر طبقے کی اکثریت دیکھی گئی جو کہ اپنے کاروبار سے وقت نکال کر نماز تراویح میں بڑی تعداد میں شرکت کرتے نظر آئے. وہیں اکولا کی اگر بات کریں تو یہاں مسلم علاقوں میں LED لگانے کا کام مکمل نہ کرنے کو لے کر عام آدمی پارٹی نے میونسپل کارپوریشن اور مقامی کارپوریٹروں پر سوال اٹھا دیا ہے. آپ لیڈروں کے مطابق رمضان کے دوران مسلم علاقوں میں LED نہ لگانے کی وجہ سے عوام کو پریشانی ہے. ان کے مطابق اگر جلد سے جلد مسلم علاقوں کو اندھیروں سے نجات نہیں دلائی گئی تو اس کے لیے احتجاج کیا جائے گا. ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی راجیہ سمیت پورے جھارکھنڈ میں شدید گرمی ہے. شدید گرمی میں بھی مسلمان روزے کا خاص اہتمام کر رہے ہیں. بازاروں میں اس کا اثر ضرور دیکھا جا رہا ہے. دکانوں کی اگر بات کریں تو یہاں خریداروں کی بے حد کمی دکھائی دے رہی ہے. واضح ہے کہ رانچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے. جیکواڑی ڈیم سے گوداوری ندی کے لیے پانی چھوڑنے کے مطالبے کو لے کر پیٹھن میں کسانوں نے زبردست احتجاج کیا. دن بھر چلے اس احتجاج میں حکومت کو کسان مخالف قرار دیا گیا. کسان لیڈر جیاجی راؤ سوریہ ونشی نے اس احتجاجی ریلی کی قیادت کی.